बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुहानूं दर्शन करवाने आ उदासीन आश्रम डेरा बाबा मोहन दास जी जैतो मंडी जिला फरीदकोट, जिथे श्री श्री 1008 बाबा मोहन दास जी की 25वीं सालाना बरसी और श्री श्री 108 बाबा भरत मुनि जी की 12वीं सालाना बरसी बहुत ही श्रद्धा नाल मनाई गई। अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन महंत बाबा कमलदास जी समूह शहर निवासी इलाके ने संगतां दे सहयोग नाल करवाए गए समागमां मौके आरंभे पाठां दे भोग पाए गए। इस मौके बड़ी गिनती विच संत महापुरुष अते संगतां ने हाजिरियां भरियां। मेरे सतगुर औखे वेले नाम दी शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, शामा कर देने सतगुर 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 शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, कट के लेख मथे दे माड़े, कट के लेख मथे दे माड़े, लेख मथे दे माड़े, कट के लेख मथे दे माड़े, कट के लेख मथे दे माड़े, कट के लेख मथे दे माड़े, के लेख मथे दे माड़े, कट के लेख मथे दे माड़े, कट के लेख मथे दे माड़े हंस कावां तो कर देने, कट के लेख मथे दे माड़े हंस कावां तो कर देने, कट के लेख मथे दे माड़े हंस कावां तो कर देने, कट के लेख मथे दे माड़े हंस कावां तो कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, शामा कर देने सतगुर 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 शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, शामा कर देने सतगुर 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 शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, मेरे सतगुर औखे वेले नाम दियां शामा कर देने, कट के लेख मथे
ਹੰਸ ਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਟ ਕੇ ਲੇਖ ਮੱਥੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੰਸ ਕਾਵਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉੱਥੇ ਘੜੀ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੱਜਣੋਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸਥਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀ ਪੇਕ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਖੜਦਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਇਕਸਵਰਤਮੰਦ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੈਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੱਜਣੋ, ਮੈਂ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਹਰੀਹਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਪਸਵੀ, ਅਨੇਕੀ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਂ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਸੀਨ ਭੇਖ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਰੀਹਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਲਦਾਸ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਹਰ ਆਸ਼ਰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੁਗੰਧੀ ਜਿਹਨੇ ਵਖੇਰਨੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੇਹ ਦੇ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਮਹੰਤ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10,000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਭਜਨ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੱਜਣੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 4 ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੈ ਨਾਮ। ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਮ ਹੈ? ਸੰਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਸਤਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਘੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤੋ ਨਗਰੀ ਤਾਰੋ ਗਾਮ, ਅਲਖ ਪੁਰਖਾ ਸਿਮਰੋ ਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਆ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਉਨਕਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਦਲੈਂਕੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੋ ਨਾਮ ਹਨੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ 2 ਦਲੈਂਕੜ ਵੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਸ, ਤ੍ਰੇਹੋ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨਾ ਲੱਗਾ। ਰਜੋ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ, ਇਹ 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਇੱਥੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹੰਤ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਜਣੋ, ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਰਤਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਡੇਉੜ ਖੇੜੀ ਦੇ ਮਹੰਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭੇਖ ਦੇ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤੀ ਔਰ ਭਜਨ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਸੰਤ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਲਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੂਹ ਬਦਲੀ। ਔਰ ਜੋ
ਭਰਤਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪ महंत कमलदास जी का साथ दो, ताकि साडा ये स्थान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। फकीर की जिन्हों के बारे में मैंने सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई फकीर होएगा। वो भगतवाणी जी किसी एक कामरेड से, वो कामरेड दे बोर च रहे, कोई श्रद्धालु नहीं सी। तो रामबाग च जाके उत्थे कुछ भी नहीं सी। आजकल तो रामबाग च बहुत कुछ कर लेंदे लोग, उस समय कुछ भी नहीं सी। तो इत्थे एक बाबा रहिंदा सी, पिंगला बाबा। इत्थे भी बोर्ड का दरख्त सी, बोर्ड पीपल ते नीम, परले पासे भी एक दरख्त सी। वो उत्थे आके बह गए तो ये बाबे दी उन्हां नाल संस्कार मिले ना। फिर कई बार उन्होंने मन बनाया कि मैं जाऊंगा। इत्थे एक भाग सिंह हुंदा सी सरपंच पिंड दा, उन्हां नाल 12 बेटियां खेड लैंदा सी। ते उन्हां दे करके कुछ समय रहे और जो कुछ बन गया ना वो आप ही बन गया। अब तो कमलदास जी आए, उन्होंने अभी तो मेरे को भी हैरानी हुई कि तो कुछ कह रहे थे कि साल में 4 महीने में इतना कुछ होया, तो साल होने तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। ये बड़भागे ने, लेकिन बाबा मोहनदास जी मारना चक्रवर्ती सम्राट सन। थोड़ा जा उन्होंने को पैसा होया ना, थोड़ा जा पैसा होया कि चल शास्त्री तेल पा दे, चलिए हरिद्वार को, चलिए वृंदावन को। और थोड़े जे कोई मत्था टेक गया तो कर लो पाठ। कोई दिन नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई महापुरुषों ना, कर लो पाठ। ऐसे अकिंचन फकीर, ऐसे महापुरुष इसी के उपलक्ष्य में जो भंडारा किया जा रहा है, ये बाबा कमलदास जी की मेहनत का रूप किया जा रहा है। क्योंकि अभी 4 महीने पहले भी भंडारा हुआ और अभी ये दूसरा भंडारा हो रहा है। तो इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बाबा मोहनदास जी, बाबा भरतदास जी, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान इन पे कृपा रखे। ये दिन रात ऐसे ही कार्य करते रहें। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। डेरा बाबा मोहनदास जी जेतो मंडी ब्रह्मलीन बाबा मोहनदास जी, ब्रह्मलीन बाबा भरत मुनि जी, उनकी बरसी के निमित्त आज की इस पंजाब की जो है पवित्र भूमि पर हम सारी संत समाज एकत्रित होके उनकी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमें विशेष कुछ बताना नहीं है, सभी महापुरुषों ने आपको विशद रूप से सारी कुछ बताए हैं। समाज के लिए हमारे इतनी बड़ी काम है, ये है हमारे वर्तमान हमारे गुरु भ्राता महंत कमलदास जी एक सुचारू, सुयोग्य और सांगठनिक कार्य कुशलता की धुरी है। इन्होंने केवल अपनी जो है दिल्ली दरबार भी नहीं, इन्होंने उत्तराखंड और भी अपनी जितनी शाखा मकानों है ये है। और वर्तमान में जो है जेतो मंडी के जो है 4 चांद लगा के रखे हैं। समय कुछ समय अपने वैश्विक आपदा के कारण जो है बहुत सारी अपनी कार्यक्रम जो है जो निरंतर होता रहा था वो कुछ धीमी गति से ऐसी जो है चल रहा था। लेकिन उस परिवेश से जो हम निकल चुके हैं और पंजाब के तपभूमि कर्म भूमि पर हमारे जितनी आश्रम है ये है जिसे हम डेरा कहते हैं। डेरा का मतलब ये नहीं जो है कोई बड़े है कोई छोटे हैं। जो हमारे बरगद के छाए में भी संत बैठे हुए हैं वो भी हमारे डेरे हैं।
जो नहर किनारे बैठ के भी तपस्या कर रहे हैं वो भी मेरे डेरे हैं। जहाँ संगत जाने से जो है उनकी आत्मनिरीक्षण की अनुभूति होता है, जहाँ उनको आत्म शांति मिलता है और जिससे उनकी जो है जीवन जीने की जो है सही दिशा मिलता है, तो उसे हम डेरा कहते हैं। ब्रह्मलीन बाबा भरतमुनि जी महाराज की 12वीं वर्षी बड़े ही धूमधाम के साथ संपन्न होने जा रही है। सभी संत महापुरुषों का बड़ा ही आशीर्वाद है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम पूज्य परमादरणीय उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा प्रयागराज, वहाँ के सेक्रेटरी मेरे एक छोटे से निवेदन पर यहाँ पर पधारे और आज की इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और इस सारे कार्यक्रम की सानिध्यता हमारे परम पूज्य परमादरणीय, जिनको हम लोग पितामह भी कहते हैं, ऐसे हमारे दादा गुरु सेवादास जी महाराज और दादा गुरु अमरदास जी महाराज, और हमने दादा गुरु जी एक दिन ऐसे कहने लगे, बोले भाई शांतिदास जी को हम अपने मंडल का श्री महंत बना देते हैं। तो ऐसे हमारे महंत शांतिदास जी महाराज, क्योंकि यहाँ पर लाने में भी इन्हीं दोनों तीनों महापुरुषों का हाथ था। सभी आए हुए संत महापुरुषों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक इनके सामने छोटा सा अकीम चंद हूँ और एक छोटा सा बालक हूँ। कहते हैं कि भाई बालक से जब कोई गलती हो जाती है तो बड़े बुजुर्ग जो है उसको क्षमा कर देते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो बस इतना ही कहूँ, क्योंकि हमको बोलना नहीं आता, हम तो करने पर विश्वास करते हैं। महंत कमलदास जी देख रेख हेठ होए समागम मौके श्री महंत सेवादास जी कोटफता, श्री महंत सेक्रेटरी अगरदास जी इलाहाबाद, महंत अमरदास जी कोटफता, महंत शांति जी ड्योड़खेड़ी, स्वामी कृष्णानंद जी शास्त्री भगतमां गोल्ड मेडलिस्ट, महंत शांतानंद जी बीरोके, महंत रमेश मुनि जी भागी बंदर, महंत भूमानंद जी रापुर, महंत बालकराम जी बीरोके, महंत अमृतमुनि जी मानसा, महंत ईश्वरदास जी फत्ता मालोका, महंत प्रकाश मुनि जी पन्नीवाला, महंत देवादास जी मंडाला, महंत विवेकानंद जी जस्सी पौं वाली, महंत कृष्णदास जी पूला, महंत सुखदेव मुनि जी सेखा चिड़ी, महंत भगवान दास जी तपा, महंत शिवदास जी डिग्गी टाणी, महंत कृष्ण मुनि जी भीखी, महंत उत्तम दास जी शाहपुर, महंत सतमुनि जी भगतवाणा, महंत प्रगटदास जी सीवियाँ, महंत गंगादास जी कोठा गुरु, महंत जसविंदर दास जी रवाना अलबेल सिंह, महंत भरतदास जी बाजेवाला, महंत पंचमदास जी जेठू के, महंत विवेक मुनि जी तपा, महंत राहुल गर्ग जी धनौला, महंत लखविंदर दास जी खीवा, महंत सतमुनि जी पीलिया बंगा, महंत जयराम दास जी डब वाली, महंत निर्मल दास जी टैपी, महंत चरणदास जी हसू, महंत सरवण दास जी फिरोजपुर, महंत दर्शन दास जी डब वाली ਅਤੇ ADC मैडम भी हाजिर सन। एक बार संतां दा हो, एक बार संतां दा बनते सही, एक बार संतां दा बनते सही, मुँह मंगिया मुरादां पावेगा। एक बार संतां दा बनते सही, मुँह मंगिया मुरादां पावेगा। तू आके शीस हो, तू आके शीस झुकाते सही, तू आके शीस झुकाते सही, खाली झोलियां पर ले जावेगा। एक बार संतां दा बनते सही, मुँह मंगिया मुरादां पावेगा। एक बार संतां दा हो, एक बार संतां दा बनते सही।
सिजदा करके ते लखा ही दुनिया तर गई है जिथे हथ ने पाया है मिट्टी भी सोना बन गई है। इस दर ते सिजदा करके ते लखा ही दुनिया तर गई है हथ ने पाया है मिट्टी भी सोना बन गई है। प्रेम दिल बिच लैके आते सही प्रेम दिल बिच लैके आते सही खुशियां नाल भर के जावेगा एक बार संतां दा बनते सही मुंह मंगियां मुरादा पावेगा एक बार संतां दा बनते सही। बदल जिंदगी से दी नजर जिदे बल मारी है। इस दरदा मंगता हो इस दरदा मंगता बन जा तू शाहां दा शाह अखवावेगा एक बार संतां दा बनते सही मुंह मंगियां मुरादा पावेगा एक बार संतां दा बनते सही। करनी वाले साधु महाराज रखो मोहि राज सुमोहि मारी संसार सुंदर अधिकार करो जैसे गौतम नारे हल्या कुचाई गही जापति तुम्हारे तापति कहूँ आख तरे नहीं आने हो राम रहीम कुरान कुरान लेख कह मत इकन मन्यो सुरत सातर विद सब बहु विद कर राम इकन जन्यो श्रेयस पाने के पा तुम्हारी कार मैं ना कहो सब दुहे बखान्यो सगल द्वार को छाड़ कह गयो तुम्हारो द्वार भाई गए की लाज आस गोविंद दास बार ऐसी जन प्रताप दे जीवन बड़ो प्रताप तीन लोक जय जय कर नाम सजाप अवसर राखी द्रौपदा संकट यो प्रहलाद कहन सुन की काश नहीं जन पड़ेगी लाज देवा कुल विराड़िया ना कर बैठा चेत साहेब गौड़ा लोड़िया नवर बगाड़े रेत अपन हरे की बेन देखो सुनो गई महाराज जेवा पुत्र पूत गौड़ पिता को लाज जिस निवास गेर पड़ी बापा पन की पोट तांते सी समवाई लगे न जाऊं की चोट हो दे मन जूर तेरे सेवकामी सेवा
हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर जी, 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 हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा। कबीर सेवा को दोए पले, 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 कबीर सेवा को दोए पले। एक संत करां तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर 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 जी, 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 हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर तेरे सेवकां दी सेवा। राम जो दाता मुक्ति को, 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 राम जो दाता मुक्ति को। संत जपावे नाम तेरे सेवकां दी सेवा, हो जे मंजूर 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 जी, हो जे मंजूर जी, हो जे मंजूर जी, हो जे मंजूर जी। बोल जगत गुरु श्री चंद भगवान की जय। सिद्ध बाबा हरिहर जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा तपस्वी मोहनदास जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा भरत मुनि जी महाराज की जय। आज हम आप सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे बड़े ही तपस्वी और बड़े ही उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष सिद्ध बाबा मोहनदास जी महाराज और सिद्ध बाबा भरत मुनि जी महाराज की बरसी, बाबा मोहनदास जी महाराज की 25वीं बरसी और बाबा भरत मुनि जी महाराज की 12वीं बरसी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। सभी संत महापुरुषों ने अपना अपना आशीर्वचन दिया और शुभकामनाएं दी और सभी संत महापुरुषों का बहुत ही आशीर्वाद मिला, क्योंकि संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। और हमारे पंजाब मंडल के हों चाहे और अनेक प्रांतों से हों, जैसे इलाहाबाद से हमारे सेक्रेटरी अग्रदास जी महाराज और देवड़खेड़ी कैथल से शांतिदास जी महाराज, महंत सेवादास जी महाराज, अमरदास जी महाराज और सभी पूरे पंजाब मंडल के संतों ने आकर के हमको दर्शन दिए और श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि संत महापुरुषों का आशीर्वाद जीवन के लिए कल्याणकारी होता है और उदासीन आचार्य जगत गुरु श्रीचंद भगवान की कृपा से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और उदासीन आचार्य जगत गुरु श्रीचंद भगवान की 528वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। डेरा बाबा मोहनदास जी उदासीन आश्रम में यह सभी कार्यक्रम संपन्न सिद्ध बाबा मोहनदास जी महाराज और सिद्ध बाबा भरत मुनि जी महाराज की वर्षी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई है।
और यहाँ पर अखंड पाठों की लड़ी खुली हुई है। 16 अगस्त से यहाँ पर अखंड पाठों की लड़ी शुरू हुई थी, जो 13 सितंबर तक यह लड़ी प्रारंभ रहेगी। और उदासीन आचार्य श्रीचंद भगवान का जन्मदिन 5 सितंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सभी संत महापुरुषों ने अपनी अपनी ओर से आशीर्वचन दिए और शुभकामनाएं दी, और मैं गौरव गर्ग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये भी अपने चैनल के माध्यम से उदासीन आचार्य श्रीचंद भगवान का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और पंजाब में जितने भी डेरे हैं, जितने भी आश्रम हैं, सबका यह कार्यक्रम लाइव डी लाइव दिखाते रहते हैं। यह सभी संत महापुरुषों के बड़े प्यारे हैं और मैं इनके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए सभी लोगों को, देश विदेश में बैठे हुए लोगों को यहाँ पर कार्यक्रम लाइव दिखा रहे हैं। मैं लास्ट में सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। संत महापुरुषों ने दर्शन देकर मुझे एक छोटे से अकीमचंद कमलदास को कृतार्थ किया, और सभी संत महापुरुषों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सेवादारों का, जितनी भी हमारी इस डेरे से, डेरा बाबा मोहनदास जी उदासीन आश्रम से संगत जुड़ी हुई है, सभी ने तन मन धन से मेरा बहुत सहयोग दिया और आश्रम का बहुत जो है क्या नाम है सेवाओं में हर प्रकार से लगे रहे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोल जगत गुरु श्रीचंद भगवान की जय, सिद्ध बाबा मोहनदास जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा भरत मुनि जी महाराज की जय। हरिहर हरिहर हरिहर। ਬੀਬੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਆਏ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਕੋਟਫੱਤਾ, महंत शांति जी ड्योड़ खेड़ी ਅਤੇ महंत कमलदास जी ਵੱਲੋਂ पंगत पूजा भी की गई। जैतो मंडी जिला फरीदकोट तो गौरव गर्ग शेरपुर की एक खास रिपोर्ट। नगर है यहाँ संभल कर आना जी, ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ किसी का, जो भी आए यहाँ किसी का हो जाए दीवाना जी। जन्म जन्म तक मन भीगे, सागर से रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा बरखा होए यहाँ पर, बचे न कोई घराना जी।
प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। चुभती भूले बताशा पानी में। यहाँ द्वैत की सुई न चुभती भूले बताशा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते सदगुरु की राजधानी में। पहने ताज फकीर